सो जो आप गल कर रहे थे रिगार्डिंग द कैमियोस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन बाय मीनस ऑफ पोलर ट्रांसपोर्टेशन। सो पोलर ट्रांसपोर्टेशन की आप गल की सी कि जो पेरेन्काइमा सेल्स ने दे विल हैल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन फ्रॉम वन सेल टूवर्ड्स अनदर सेल बाय मीनस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस एज वेल एज दे रिक्वायर सिम्पोर्टर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन in a basipital manner. That means from the upward side they has to move towards the lower side। ठीक है। सो ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਵਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਨੇਟਡ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਡੀਪ੍ਰੋਟੋਨੇਟਡ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਦ ਡੀਪ੍ਰੋਟੋਨੇਟਡ ਫਾਰਮ ਡੀਪ੍ਰੋਟੋਨੇਟਡ in the sense which is negatively charged one, this one. So this one requiring the pin proteins for their transportation, and this pin trafficking and localization with respect to the directionality of the oxygen transport। ठीक है। So like ਜਿਹੜੀ subcellular polarity of pin determine the direction of oxygen efflux। obvious ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ pin ਦੇ localization ਸੀਗੀ ਸੋ determine ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ oxygen ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਕਿਸ ਸੈੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ move on ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। and they has to be exclude out of that particular cell, and thus coordinated pin localization along the chain of cells channelize directionality of the oxygen transport। and pins are not statically localized at the plasma membrane but undergo the rapid clathrin mediated endocytic cycling। सो एंडोसाइटिक साइकलिंग ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗੈਟ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਔਨ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਬਾय द ARF GEF ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਪੋਲਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਾਈਨੇਜ਼ ਆ ਪਿਨੋਇਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫਾਸਫੇਟੇਜ਼ ਹੈ that is 2A complex RCN1 are also involved in regulating this pin trafficking। so pinoid kinase enzyme, ठीक है, protein kinase enzyme as well as the protein phosphatase enzyme that is 2A complex RCN1 are also involved in the pin trafficking। that means they will also help in the synthesis of the pin proteins। ठीक है। when they has to be localized upon the plasma membrane and the ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਅਗਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨਹਿਬਿਟਰਸ ਆ ਕੇ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਣ ਲਾਈਕ TIBA ਹੈ। ठीक है। TIBA हो गया NPA हो गया या सर्टन फ्लेविनोल्स हो गए दे विल अफेक्ट देयर ट्रैफिकिंग। ठीक है। सो TIBA that is 2,3,5 triiodobenzoic acid and NPA is a naphthyl phthalmic acid। ठीक है। and flavanol like quercetin so which will affect the pin trafficking or it will inhibit the activity of the oxygen efflux। ठीक है। so that are the basic features of the chemiosmotic hypothesis regarding the transportation of oxygen hormone by means of polar transportation। next is non polar movement। ਜਿਹੜੀ non polar movement ਹੈ that is basically mediated by the ਫਲੋਇਮ ਦੇ ਥਰੂ ਮੀਡੀਏਟ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਇਮ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਲੀਵਸ ਦ ਫੂਡ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫਾਰਮਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਵਸ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਬਾਈ ਦਾ ਫਲੋਇਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਪਵਰਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਫਰੋਮ ਦ ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਅਪਵਰਡ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਪਲਾਂਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਮੂਵਸ ਇਨ ਅ bi-directional movement or in a two ways from upward towards lower and lower towards the upward side। ठीक है। so bi-directional movement होने करके की है जी नॉन पोलर मूवमेंट है नॉन पोलर मूवमेंट इन द सेंस दैट मूव्स upward to lower and lower to upward side। ठीक है। तो ऑक्सीजन हार्मोन की जी ट्रांसपोर्टेशन है एट अ लॉन्गर डिस्टेंस दैट इज़ कैरीड आउट बाय द फ्लोइम एंड जी अपने को पोलर ट्रांसपोर्टेशन है और फ्लोइम ट्रांसपोर्टेशन है दे आर बोथ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर।
कि अपने को, क्योंकि जो फ्लोइम है नॉन पोलर भी मूवमेंट शो कर रहे हैं, नॉन पोलर इन द सेंस कि लोअर तो थोड़े को अपवर्ड साइड वालों मूवमेंट हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द नॉन पोलर मूवमेंट। जी पोलर सी वो अपवर्ड तो अपने को लोअर वाली साइड ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ, दैट इज़ अ पोलर एंड दिस इज़ नॉन पोलर। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है, ठीक है। सो नॉन पोलर जी मूवमेंट है इट इज़ ड्यू टू द asymmetrical orientation of AUX1 permease, that is auxin 1 permease proteins, which will promote the acropital movement of auxin hormone, ठीक है। एंड जो अपने को फ्लोइम है दैट जी अपने को डायग्राम है, दिस डायग्राम इज़ रिप्रेजेंटिंग द asymmetrical localization of this is radioactively labeled OX1 permease enzyme, ठीक है। permease proteins देंगे, ठीक है। सो दे आर रेडियोएक्टिवली लेबल्ड है, ठीक है। सो ये दिखाए गए हैं कि ਜਿਹੜੇ प्रोटोफ्लोइम रीजन है उस ਵੱਲ ਨੂੰ asymmetrically distributed ਨੇ, ठीक है। सो this will lead to the transportation of auxin hormone from lower towards the upward side, ठीक है। एंड जी अपने को फ्लोइम के थ्रू पोलर जी मूवमेंट है, ठीक है, पोलर मूवमेंट और प्लस जी फ्लोइम की ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट है, दे आर बोथ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। सो अपन ये पता लगता कि जो OX1 permease है दैट विल हैल्प इन प्रोवाइडिंग द मूवमेंट इन अ एक्रोपिटल फैशन। सो एक्रोपिटल फैशन मूवमेंट करने हेल्प करें, सो दैट्स वाई दिस फ्लोइम विल मीडिएट द नॉन पोलर ऑक्सीन ट्रांसपोर्टेशन। सो इसके पिछे मैकेनिज्म की है वो प्रॉपरली तो पता नहीं हैगा, ठीक है। बट इन्होंने कहा कि जिदा ऑक्सीन है जिमें खाने नू दोनों ही डायरैक्शन वाल मूव करता फ्रॉम लोअर टू अपवर्ड एंड अपवर्ड टू लोअर, सो इट विल ऑल्सो हैल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीन हार्मोन लाइक इन दैट वे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ द फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ ऑक्सीन हार्मोन। सो पहला आप जोड़ा आप पिछे करके आए कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, उत्थे आप गल की कि जोड़े एच पॉजिटिव आयंस ने वो रिलीज़ होंगे हैं, ठीक है। एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस रीजन एंड लेड टू द एसिडिफिकेशन ऑफ द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस रीजन, ठीक है। एंड इंटरनली जी है साइटोसोलिक pH है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ IAA नेगेटिवली चार्ज वन विच हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन सैल टूवर्ड्स अनदर सैल। सो उन्होंने एज ए बेस रखते हुए ही जो अपना फर्स्ट जो फिजियोलॉजिकल रोल है दैट इज़ द सैल एक्सटेंशन, कि सैल एक्सटेंशन या जिन्होंने तुसी कहने सैल एक्सपेंशन वो किस तरीके नाल होंदी है, दैट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन दैट कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। सो दैट विल एक्ट एज अ बेस फॉर फर्स्ट जो फिजियोलॉजिकल रोल है दैट इज़ द सैल एक्सटेंशन। सो जोड़े सैल एक्सटेंशन है which is basically induced by the proton extrusion acidifies the cell wall and it will increase the cell extension. So obvious है acidifies in the sense that will lead to the movement of the protons towards the cell wall region and led to the acidification of the cell wall and it will increases the cell extension, ठीक है। And how it will occur, so that is totally depend upon the another hypothesis that is known as acid growth hypothesis। acid growth hypothesis उत्ते based है। acid growth hypothesis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि like we are having a acid buffers alone should promote the short term growth provided with the cuticle has been abutted to allow the proton access to the cell wall, कि cell wall ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ कह लो कि protons ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ move कर सकन, ठीक है। so ਜਿਹੜੇ auxin नेगे that will increase the rate of proton extrusion and led to the wall acidification and ਜਿਹੜਾ kinetics of proton extrusion is closely match those of the auxin induced growth, कि ਜਿਹੜੀ ऑक्सीजन के द्वारा आप जिमें नॉर्मली की करते हैं कि जोड़े ऑक्सीजन हार्मोन्स ने आप दो मेन बेसिक फिजियोलॉजिकल रोल्स हमेशा याद रखते हैं कि वन इज़ सेल इलोंगेशन एंड वन इज़ सेल ग्रोथ। ये आप दो मेन चीज़ा करते हैं कि ग्रोथ दे विच और इलोंगेशन दे विच ये वर्क करते हैं, ठीक है। सो इन्हां दोनों का जिहड़ा काइनेटिक्स है या वे ऑफ काइनेटिक्स है ये कितना टाइम पीरियड लेंदे ने जो ऑक्सीजन हार्मोन इंड्यूस ऑन होंदे ने, सो इन्हां दोनों का काइनेटिक्स बहुत मिलता जुलता वा, ठीक है। सो काइनेटिक्स ऑफ प्रोटोन एक्सट्रूशन इट इज़ क्लोजली मैच अप विद द ऑक्सीजन इंड्यूस्ड ग्रोथ, ठीक है। सो
ਜਿਹੜੇ न्यूट्रल बफर होंगे दैट विल इनहिबिट द ऑक्सीजन इंड्यूस्ड ग्रोथ, ठीक है। एंड कंपाउंड्स दैट प्रमोट द प्रोटोन एक्सक्लूजन शुड स्टिमुलेट द ग्रोथ, ठीक है। एंड देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस कंटेनर वॉल लूजनिंग फैक्टर विद एन एसिडिक pH ऑप्टिमम। वॉल लूजनिंग फैक्टर ऑब्वियस है कि सैल वॉल दे विच एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू द एडिशन ऑफ द H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। सो दैट विल इनिशिएट अ वॉल लूजनिंग फैक्टर एंड दैट विल लेड टू द सेल वॉल एक्सपेंशन, ठीक है ना। सो सेल वॉल दी एक्सपेंशन करने दे विच हेल्प करदा। सो दिस ग्राफ इज बेसिकली रिप्रेजेंट द काइनेटिक्स ऑफ ऑक्सीजन इंड्यूस्ड इलोंगेशन एज वैल एज अ सेल वॉल एसिडिफिकेशन, ठीक है। दोनों चीज़ों को ही रिप्रेजेंट कर रहा वा, जिमें लाइक हेयर वी आर हैविंग ए इंडोइलास्टिक एसिड एंड हेयर इज़ द लेंथ, ठीक है। सो ये की है कि जी अपने कोल आ वाला जो ग्राफ है this red one graph is basically representing the cell wall acidification in case of maize polyptyles, and this graph which is black in one that represents the length which is basically induced by the auxin hormone. Both are basically induced by the auxin hormone, ठीक है। सो ये की है लाइक हेयर जिदा जिदा ही pH जी है डिक्रीज़ होंदी जाती है, बिकॉज पहला की है pH जी है वध है दैट इज़ 6.0। सो अपने को दो ग्राफ ने, सो वन इज़ ऑफ pH एंड टाइम एंड वन इज़ ऑफ इलोंगेशन एज वेल एज द टाइम्स, ठीक है। सो जी pH है पहला की है स्टार्टिंग के वध है, जिदा ही आप इंडोइलास्टिक एसिड उस एड ऑन किया इट विल लेड टू द रिडक्शन इन द pH, ठीक है। सो pH रिडक्शन होने दे नाल की है दैट विल led to increasing the cell wall expansion, ठीक है ना। एंड जो टाइम है इट रिक्वायर्स अ मोर टाइम पीरियड। जिवें थोड़ा टाइम दिख रहा है ना पहला की सीगा लाइक आप जिवें फर्स्ट एग्जांपल ले लिया दैट इज़ एट -10 मिनट्स, -10 इन द सेंस 0 तो भी घट वाला टाइम पीरियड, ठीक है। सो उत्ते की सी pH जी सी दैट इज़ इन अल्कलीन फेज। जिदा जिदा ही टाइम बढ़ता गया दैट मीनस नियर अबाउट 30 to 40 या बेसिकली आप कह लिए कि 20 और 30 के इन बिटवीन जी यहाँ pH सी और डिक्रीज़ होनी शुरू हुई प्रॉपरली, ठीक है। सो दैट विल लेड टू द सेल वॉल एक्सपेंशन। एंड सेम ही अगर आप केस देखिए लेंथ की है जी लेंथ है वो इनक्रीज़ हो रही है लाइक इन दैट वे, लाइक इन दिस वे, ठीक है। वो भी की है विद द टाइम फैक्टर के थ्रू कह लो कि लेंथ जी है इनक्रीज़ कर रही है, ठीक है। सो जिथे पॉइंट के उत्ते मीट कर रही है दिस पॉइंट बेसिकली दैट इज़ नोन एज ई लैग टाइम। इन्हों आप लैग टाइम कहने दैट इज़ ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन लैग टाइम। सो जी आप पिछे गल की ना दिस पॉइंट सैकेंड वन, सो ऑक्सीजन जोड़े ऑक्सीजन है शुड इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटोन एक्सट्रूशन एंड दैट विल लेड टू द वॉल एसिडिफिकेशन एंड द काइनेटिक्स ऑफ प्रोटोन एक्सट्रूशन शुड बी क्लोजली मैच दोज ऑफ द ऑक्सीजन इंड्यूस्ड ग्रोथ। सो हेयर दे आर बोथ मैचेस विद ईच अदर एंड दे आर हैविंग अ सिमिलर लैग फेज, दैट मीन्स दे रिक्वायर 10 to 15 minutes for their activation or for the cell elongation as well as the cell expansion, ठीक है। सो ये ग्राफ इस चीज़ में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हुण अपने को रह आंदा कि जिवें आपां एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस की गल कीती सीगी कि उन्होंने एज अ बेस लैके जी आप गल की है कि सैल वॉल की एक्सपेंशन जी है वो किद्दां हुंदी है दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द एक्टिवेशन एंड सिंथेसिस हाइपोथेसिस। एक्टिवेशन एंड सिंथेसिस हाइपोथेसिस दे विच की है in this hypothesis first you have to know the idea of auxin binding protein which basically help in the binding of the auxin hormones which will lead to the activation of the ATPase complex which will allow the H positive ions which has to move from the cytosolic region towards the intermembrane space region where it will lead to the cell wall expansion, ठीक है। so इस दे विच पहला की है कि अपने को दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ बेसिकली द H पॉजिटिव ATPase complex, ठीक है। जोड़ा मेन स्ट्रक्चर है जोड़े थोनों दिख रहे हैं लार्जर साइज स्ट्रक्चर्स दिस इज़ बेसिकली द H पॉजिटिव ATPase है बेसिकली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन H पॉजिटिव ATPase। सो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन H पॉजिटिव ATPase composed of two sites, one is known as catalytic site and one is known as docking site, ठीक है। and on the catalytic side they are having the inhibitory domain, उन्होंने तो inhibitory domain लग्या हुंदा वा, ठीक है। तो docking site दे उत्ते की है that will lead to the binding of the ABP
57 ABP in the sense ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन। सो ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन जिहड़ा वा डॉकिंग साइड दे उत्ते आके बाइंड कर जांदा वा, ठीक है। हुण ये बाइंड कर गया, इन्हें की करना है, जिहड़ी आ इनहिबिटरी डोमेन सी, इनहिबिटरी डोमेन की है क्लोजर वन है टू दैट ऑफ द कैटालिटिक साइड, क्योंकि कैटालिटिक साइड ने खाली नहीं छड़ रहा हैगा, उन्हें बंद किया होया वा। सो जिद्दां ही ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड किते, सो दैट विल लेट टू द ओपनिंग ऑफ द कैटालिटिक साइड, ठीक है। इनहिबिटरी डोमेन को शिफ्ट कर देगा, मूव कर देगा ताकि ओपन हो सके कैटालिटिक साइड, ठीक है। जिद्दां ही ओपन हुई, सो ऑक्सिन बाइंडिंग जिहड़े प्रोटीन्स ने दैट विल अलाउ द बाइंडिंग ऑफ द ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। सो इस दे नाल की होएगा, क्योंकि ऑब्वियस है इट विल लेट टू द ओपनिंग ऑफ द कैटालिटिक साइड, ठीक है। कैटालिटिक साइड जी ओपन आउट होगी एंड ऑन दैट ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन, आ जिहड़ा ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन है विच इज़ अ 57 दैट विल अलाउ द बाइंडिंग ऑफ द इंडोल एस्टिक एसिड और द ऑक्सिन हार्मोन टूवर्ड्स दैम, जिहड़ा तुहानूं ब्लू फ्रोजी शेड दे विच दिख रहा वा, दिस सर्कुलर वन, दिस इज़ बेसिकली द ऑक्सिन हार्मोन और द IAA, ठीक है। ये आके बाइंड कर जाता वा। जिद्दां ये बाइंड करिया इट विल लेट टू जनरेशन ऑफ द कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द कैटालिटिक साइट। एक कैटालिटिक साइड के उत्ते कन्फर्मेशनल चेंज लैके आंदा, जिस दे नाल की है ATP हैज़ टू बाइंड टूवर्ड्स दैम, ATP आके उत्थे बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। दैन की हुंदा है, इस दे विच की होएगा, ATP आके बाइंड कर गया, ठीक है। हुण ATP की है, ATP तो रिलीजमेंट होएगी ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की। पहले स्टेप की है जस्ट ऑक्सीजन आके बाइंड होया टूवर्ड्स ABP 57 बाइंडिंग होगी, ठीक है। जिहड़ा अपने को इनहिबिटरी डोमेन सी ओपन आउट होया इस कंपलैक्स के नाल जाके ऐड ऑन होया जिथे ऑक्सीजन और प्लस जिहड़ा ABP 57 है वो बाइंड नेगे, ठीक है। सो उहदे नाल इहदी अटैचमेंट होगी, ठीक है। एंड ATP आके बाइंड कर गया, सो दैट विल अलाउ द कन्फर्मेशनल चेंजेस। ATP आके बाइंड होया, दैन H पॉजिटिव आयंस उन्नी देर तक बाहर वाली साइड के उत्ते मूव नहीं करेंगे जिन्नी देर तक ATP जिहड़ा वा हाइड्रोलाइज ना हो जाए इनटू द ADP एज वेल एज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो ATP तो अपने को ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्मेशन हुई, सो दैट विल अलाउ दिस H पॉजिटिव this H positive ions from the cytosolic, this is the cytosolic side and this is the intermembrane space side, so us wal no H positive ions ਜਿਹੜੇ move on ਕਰਦੇ with the hydrolysis of the ATP towards ADP and inorganic phosphate, ठीक है। सो इस तरीके नाल कह लो कि ये जिहड़ा वा H पॉजिटिव ATPase कंपलैक्स जो है वो एक्टिवेट होंदा विद द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज़ 57, ठीक है। जिद्दां ही आके बाइंड करके इट विल अलाउ द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन विच विल लेट टू द चेंजेस इन द कन्फर्मेशंस इन केस ऑफ कैटालिटिक साइड, और कैटालिटिक साइड के उत्ते आके फर्दर की है अपने को ATP आके बाइंड कर गया तो उसकी हाइड्रोलिसिस होने ते की है H पॉजिटिव आयंस जिहड़े इनर तो आउटर साइड वाल नूं मूव ऑन करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एक प्रोसैस। हुण नैक्सट की आ आपां नूं जदों पता लग गया कि है एक्सैस अमाउंट दे विच H पॉजिटिव आयंस जिहड़े मूव कर गए, pH जिहड़ी है डिक्रीज़ होगी। हुण की है ये प्रोसैस ने की है रुकना वा, वो किद्दां रुकेगा विद द एक्स्ट्रा बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन। सो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑक्सिन हार्मोन की कंसनट्रेशन आपां इनक्रीज़ करी जाने it will lead to the increasing in the cell elongation as well as cell expansion, but at a certain level, certain concentration ਦੇ ਉੱਤੇ कह लो कि इसकी cell expansion ਜਿਹੜੀ ਆ वो increase होएगी, ठीक है। and after that beyond that particular thing, so it will lead to the inhibition, ठीक है। सो इत्थे की आ ऑक्सिन हार्मोन ਜਿਹੜਾ ਵਾ फिर ਇਹਦੇ क्योंकि ਜਿਹੜਾ आ ABP है दैट इज़ द ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन, इसके कोल दो साइड्स अवेलेबल होंगी है। एक साइड के उत्ते जो ऑक्सिन हार्मोन आके बाइंड कर जाता है इट इज़ गुड, दैट मीनस इट विल अलाउ द एक्टिवेशन, ठीक है। बट वैन बोथ साइड्स आर कैरिड आउट बाय द ऑक्सिन हार्मोन दैट विल लेड टू द इनहिबिशन ऑफ द H पॉजिटिव ATPase complex which will doesn't allow the movement of H positive ions from the cytosolic towards the intermembrane space region, ठीक है। सो आ एक मेन स्टैप है जो कि अपने को इत्थे वर्क करेगा at this particular side। जिहड़े थोनों जिन्ने नंबर ऑफ H पॉजिटिव ATPase दिख रहे हैं आ वाले हो गए, आ हो गया, ठीक है ना। सो ईच एंड एवरी H पॉजिटिव ATPase वर्क्स इन दिस वे, ठीक है। इस तरीके ना काम करेंगे।
सो अपने कोल दो हाइपोथेसिस नहीं, वन इज़ एक्टिवेशन हाइपोथेसिस एंड वन इज़ सिंथेसिस हाइपोथेसिस। ਜਿਹੜੀ एक्टिवेशन हाइपोथेसिस है मीनस एक्टिवेशन ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ इट हैज़ टू बाइंड टूवर्ड्स ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन 1, ठीक है। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾइंड करेगा। सो सेम वही प्रोसीजर दैट विल लेड टू द एक्टिवेशन ऑफ द H positive ATPase। सो जिस दे नाल with the hydrolysis of ATP that will allow the H positive ions towards the intermembrane space region, ठीक है। ये हैगी एक्टिवेशन हाइपोथेसिस। नैक्सट है सिंथेसिस हाइपोथेसिस। सिंथेसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, सिंथेसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, दैट विल लेड टू द सिंथेसिस ऑफ व्हाट, दैट इज़ ऑफ H positive ATPase complex, ठीक है। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, सिंथेसिस ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਹੈ दैट विल इंड्यूस सेकंड मैसेंजर ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੇਗਾ, दैट इज़ द कैल्शियम आयंस, ठीक है। सो कैल्शियम आयंस ਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ दैट विल बाइंडिंग टूवर्ड्स H positive ATPase जीन, ठीक है। सो ये जीन्स उत्ते आके इन्हों की बाइंडिंग टेक प्लेस होएगी, ठीक है। सो दैट विल एक्टिवेट द एक्सप्रैशन ऑफ जीन्स दैट एनकोड द प्लाज्मा मैम्ब्रेन H positive ATPase, क्योंकि इन्होंने की है H positive ATPase जोड़ा वा वो बनाना। सो ऑब्वियस है एनकोडिंग हो रही है, दैट मीन्स इट विल अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, दैट मीन्स इट अंडरगो द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, देन ट्रांसक्रिप्शन इट विल लेड टू द टूवर्ड्स द ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। दैट मीन्स इट विल अलाउ द formation of the proteins which will lead to the formation of the H positive ATPase in a vesicle form, because it moving towards the rough endoplasmic reticulum। The rough endoplasmic reticulum the obvious है ribosomes available हैं, so that means it will allow the translation of the H positive ATPase। so they has to move and they will forming the H positive ATPase in vesicle form, ठीक है। सो दे आर मूविंग टूवर्ड्स अ गोल्जी बॉडी। सो गोल्जी बॉडी वाल तो फर्दर नंबर ऑफ वेजिकल्स आर टू बी रिलीज। सो नंबर ऑफ वेजिकल्स H positive ATPase complex से बहुत सारे रिलीज होंगे हैं एंड दे गेट अटैच टूवर्ड्स द प्लाज्मा मैम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मैम्ब्रेन के उत्ते जाके बाइंड अप कर जाएंगे, ठीक है। then जिदा ही वो बाइंड अप करते हैं इट विल अलाउ द एक्टिवेशन ऑफ द H positive ATPase and they will allow the movement of the H positive towards the intermembrane space region, ठीक है, by means of the hydrolysis of ATP। बाकी सेम वही प्रोसीजर है जो आप एक्टिवेशन की गल की सीगी, जस्ट इत्थे की है इट विल अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ द H positive ATPase proteins, ठीक है। एंड व्हेन a number of H positive ions has to move towards the intermembrane space region or towards the cell wall region, because this is a cell membrane, ठीक है, और in between region है। तो आ जी cell wall region दे विच की है H positive ions की concentration की है हुन ज़्यादा हो गई है from the cytosolic side, ठीक है। तो ऑब्वियस इतने pH ज़्यादा होगी। सो pH ज़्यादा होने दे नाल या H positive ions की concentration ज़्यादा होने देना है, it will allow the activation of the expansin proteins, and these expansin proteins which will result in the expansion of the cell wall। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ further cell wall ਦੀ expansion ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰਦਾ ਵਾ, clear। सो आ अपने को जो फर्स्ट फिजियोलॉजिकल रोल है दैट मीन्स इट विल इंड्यूस द सेल वॉल एक्सटेंशन और द सेल वॉल एक्सपेंशन। सो दैट इज़ बेसिकली कैरिड आउट बाय द auxin hormones by binding towards the auxin binding proteins or maybe it gets synthesized, ठीक है, from the H positive ATPase gene which will lead to their translation forming the H positive ATPase vesicles, and they get attached towards the plasma membrane and they will further allow the movement of the H positive ions towards the cell wall region, and where they will lead to the activation of the expansin proteins, and the expansin proteins they obviously that will allow the cell wall expansion or the cell wall extension, ठीक है। So this is the model of indole acetic acid induced H positive extrusion, ठीक है।